हेलो, गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने देखा प्रॉब्लम्स, हाउ टू कन्वर्ट अ बुलियन एक्सप्रेशन इनटू द मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म। ओके, और उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, राइट। अब हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट को स्विच करते हैं। ओके, नाउ वी विल गो ओवर द नेक्स्ट पॉइंट, सी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। uh, K-map reduction techniques for Boolean expressions. Okay. Now, as per your curriculum, it is given simplifications of logical functions using K-map. Okay. But at this moment, I would like to tell you here what is K-map. Okay. So you should first understand the what is K-map, why K-map is used, okay, and how you can use this K-map reduction techniques for the Boolean expressions. Okay, so step by step, I'm coming over the point which is given in your curriculum. Okay, actually, if I directly told you that point, okay, then you cannot able to see, you cannot able to understand. So that's why I'm going with step by steps. Okay. So here I'm starting with the basics like K-map reduction techniques for the Boolean expressions. Now here K-map is a graphical method. Okay, first of all, keep it in mind. We have already learned the reduction technique of the Boolean expressions. We have learned the different rules under that Boolean algebra, as well as we have learned the De Morgan's theorems. Okay, and with the help of that, we have gone through the reduction of the Boolean expressions. But that method was quite lengthy because you need to remember different sort of rules of Boolean algebras as well as De Morgan's theorems. Okay, and then finally you will get the reductions equations. But now here it is a fastest method given by the designers that is called as an K-map. It is a graphical method. Okay, everyone can use it. Very simple. Okay, very simply you can use this method and you can convert uh, any Boolean expressions. Okay, into a simple or good manner. Okay, so K-map is a graphical method used to simplify logical equations or to convert a truth table to its corresponding logic circuit in a simple and systematic manner. Okay, the K-map or shortly we will say, okay, the Karnaugh means K-map. The Karnaugh means K-map. Okay, is made up of squares. Okay, each square represent one term. Okay, here each square is representing one term. Okay, and it is a systematic method for combining term and obtaining the minimal expressions. Okay, just I am again repeating the sentence. Okay, here it is a graphical method, and with the help of this method we are going to go for reduction of the Boolean expression. Okay, and here this K map is made up of square. One square represent one min term, okay, or max term. Okay, one square will represent here one min term or max term that we have already learned in the previous video. Okay, it is a systematic method for combining term and obtaining the minimal expression. We have already seen problems. Okay, I have given you how you can find the min terms. Okay, I have shown you how you can club the min terms and max term SOP POS form. Okay, so that's why these method are present. Okay, these method are also easier, but over that here this is the most simplest technique. Okay, for uh, conversion of SOP to POS or POS to SOP as well as reduction technique. Okay,
Now each n variable, okay, n variable map will consist of 2 raised to n cell और स्क्वायर, यानी यहाँ आपको n जितने वेरिएबल रहेंगे, ओके, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 2 रेज टू n सेल और स्क्वायर. ओके, if you consider a three variable, okay, will have 2 raised to 3 means 8 cells. Okay, if you see a 4 variable map, then it will have 2 raised to 4 means 16 variable, 16 cells. Okay. Each cell within the K-map corresponding to the particular combination of the input variable. Okay. Remember, each cell within the K-map corresponds to the particular combination of the input variable. Example, if you see a two variable K-map, then there are 2 raised to 2 means 4 cells are present. Okay. Now remember, each cell within a K-map has a definite place value which is obtained by using an encoding technique known as Gray code. क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ जो स्क्वायर रहेंगे वह स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे आइदर मीन टर्म और मैक्स टर्म. यहाँ जितने नंबर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट रहेंगे, फॉर एग्जांपल इफ देर आर n number of variable, then n number of variable are defining here 2 raised to n number of squares. Means if there are 3 variables, means it will show 2 raised to 3 means 8 cells. सिंपली बता रहा हूं, आपने ऑलरेडी एसओपी और पीओएस में 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल देखा. 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल था ए, बी और वाई, या एक्स, वाई और आउटपुट. ओके, तो इस तरह आपने एक्स और वाई का यहाँ पर ट्रूथ टेबल देखा है. मैं आपको लगे तो पिछले स्लाइड्स में लेकर जा रहा हूं. सी, आपने इस तरह के ट्रूथ टेबल देखे हैं. वेट, आई एम कमिंग. यहाँ पर ये जो है ट्रूथ टेबल, ये 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल है. 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल यानी 2 रेज टू 3 यानी 8 टोटल, m0 से लेकर m7 यानी टोटल 8 वेरिएबल. यहाँ पर 8 स्क्वायर यहाँ पर आए हैं. गेटिंग? सिमिलरली आपने 2 वेरिएबल का भी ट्रूथ टेबल देखा है. ओके, ये 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल है, ए, बी और वाई. ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 00011011. ओके, यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन आपको मिले हैं. ओके, यानी ये 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल है, तो वहां आपको 2 रेज टू 2 बोले तो 4 स्क्वायर आएंगे. ओके, नाउ आई एम कमिंग ओवर माय मेन पॉइंट. गेटिंग एवरीवन? ट्रूथ टेबल ऑलरेडी आपने देखे हैं. ओके, तो इस वजह से ये ट्रूथ टेबल आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ. अगर आपके पास 2 वेरिएबल का मैप है तो 2 रेज टू n यानी 3 वेरिएबल, ओके, 2 वेरिएबल का है तो 2 रेज टू 2 यानी 4 सेल. 4 सेल वहां पर रहेंगे. 3 वेरिएबल का रहेगा तो 8 सेल रहेंगे. 4 वेरिएबल का रहेगा तो 16 सेल रहेंगे. चलिए कैसे रहेंगे देखते हैं यहाँ पर. अभी और एक सेंटेंस माइंड में रखना. ईच सेल within a K-map has definite place value which is obtained by using encoding technique known as Gray code. ऑलरेडी हमें ग्रे कोड पता है. ग्रे कोड का ट्रूथ टेबल भी हमने फर्स्ट यूनिट में देखा है. ओके, तो उसी तरह यहाँ पर ये एनकोडिंग टेक्निक यहाँ यूज की जाती है. ओके, यहाँ ग्रे कोडिंग के ऊपर ही हमारा यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है के मैप की वह फिक्स होती है. सी कैसे होती है? सी आई एम टेलिंग. आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक डायग्राम है और राइट हैंड साइड में ट्रूथ टेबल है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है उसके लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए एक स्लैंटेड लाइन बनाई है. राइट, स्लैंटेड लाइन के आजू बाजू लिखा है ए, बी और सी, डी. मेरा माउस का कर्सर भी है, जिसको स्लैंटेड लाइन समझ में आ रहा है या नहीं पता नहीं. ओके, लेकिन यहाँ पर मैं माउस का कर्सर भी मूव आउट करा रहा हूँ. ओके, so that's why here you can able to see AB and CD.
AB and CD means these are how many variables? These are four variables. Four variables means 2 raised to 4 means how many cells? 16 cell. Getting? फिर से रिपीट करता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको स्क्वायर 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 सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं. उसके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको एक स्लैंटेड लाइन है. उसके नीचे के साइड में लिखा है ए बी, अबव साइड में लिखा है सी डी. ओके, तो ए बी और सी डी यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ लेफ्ट, ओके, यहाँ पर, ओके, यहाँ रो साइड और ये कॉलम साइड है. ओके, तो रो साइड में आपको ए और बी का यूज किया है और कॉलम साइड में सी और डी का यूज किया है. ओके, यानी कितने वेरिएबल हो गए यहाँ पर? ए बी सी और डी, यानी कितने हो गए वेरिएबल? 4 वेरिएबल यहाँ पर है. 4 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बाजू में राइट हैंड साइड में लिखा है ए बी सी डी और उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू आपको दी है. उसकी आपको डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू भी दी है. ओके, तो वह टोटल 5 कॉलम्स है ए बी सी डी और डेसिमल इक्विवेलेंट इस तरह का आपको ट्रुथ टेबल भी देख के रखा है. चलिए मैं अभी यहाँ पर एक एक वैल्यू बताते जाता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको जो स्क्वायर बॉक्सेस दिए हैं, ए बी यहाँ पर लिखे हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0. अभी ये लेबलिंग हमने ग्रे कोड लेबलिंग यहाँ पर यूज की है. कौन सी कोडिंग की है? ग्रे कोड. ग्रे कोड लेबलिंग यानी कैसा? यहाँ पर हम बोलते हैं ए बार बी बार यानी ए बी, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, या आप उसे सिंपली न्यूमरल्स में कहिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0. उसी तरह सी डी भी लिया है. सी डी यानी यहाँ उसे कॉलम बताए हैं. ग्रे कोड लेबलिंग फॉर कॉलम्स. आई होप एवरीवन इज गेटिंग, एवरीवन इज वाचिंग विद दिस वीडियो. ओके, सभी को समझ में आ रहा है. सी डी यहाँ पर देखिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0 लिया है. ओके, तो अभी यहाँ पर ये कॉलम्स की वैल्यू है. अभी मैं यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ ए बी सी डी. ओके, तो यहाँ ए बी सी डी यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो ट्रुथ टेबल में देखिए मैंने हाईलाइट किया ए बी सी डी की वैल्यू 0 0 0 0. अगर 0 0 0 0 है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 0. तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको शो किया है. ओके, तो 0 0 0 0 इस तरह डेसिमल इक्विवेलेंट आपको यहाँ शो किया है. ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? उसी तरह ए बी यहाँ पर 0 0 लिया है लेकिन सी डी की वैल्यू चेंज की है नेक्स्ट कॉलम में 0 1. गेटिंग माई पॉइंट? ए बी यहाँ पर 0 0 है और सी डी यहाँ पर चेंज की सेकंड कॉलम ले रहे हैं. तो सेकंड कॉलम में वैल्यू है 0 1. तो यहाँ 0 1 का यानी सी डी इस तरह रहेगा. ओके, 0 0 0 1 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट रहेगा 1. तो डेसिमल इक्विवेलेंट 1 वहां पर लिखा है. आई होप यू आर गेटिंग इट. सिमिलरली थर्ड कॉलम छोड़ के मैं फोर्थ कॉलम में जाता हूँ. पहले फोर्थ कॉलम में लिखा है यानी फोर्थ कॉलम में सी डी की वैल्यू लिखी है 1 0 और ए बी की पहले रो में वैल्यू लिखी है 0 0. तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट रो में सेलेक्ट कर रहा हूँ 0 0 1 0. तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू है 2. तो वह 2 यहाँ स्क्वायर में लिखा है 2. गेटिंग एवरीवन? उसी तरह मैं सी डी की वैल्यू फिर से चेंज कर रहा हूँ. मैं थर्ड कॉलम में यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ सी डी की 1 1. तो 1 1 सी डी की अगर वैल्यू होगी और ए बी की पहले रो की वैल्यू रहेगी 0 0. तो आपको मिलेगा 0 0 1 1 यानी उसका डेसिमल इक्विवेलेंट रहेगा 3. तो 3 वैल्यू यहाँ पर वह सेल में लिखा है. ये सेल है या आप उसे स्क्वायर कह सकते हो. ओके, नाउ उसी तरह अभी ए बी की सेकंड रो का, ए बी को सेकंड रो में वैल्यू ले रहे हैं 0 1 और सी डी का फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ले रहे हैं 0 0. तो 0 1 0 0 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. 0 1 0 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4. तो 4 वहां पर लिखा है.
उसी तरह 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह सारी वैल्यू हमने यहाँ पर इस रो और कॉलम कॉम्बिनेशंस के द्वारा लिखी है। तो ध्यान में लीजिए, हर सेल में डेसिमल इक्विवेलेंट कोड वर्ड आपका यहाँ पर के मैप का लिखा है। ओके, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस ट्रुथ टेबल एंड दिस के मैप टेबल। ओके, लेकिन मैं अभी यहाँ पर ये के मैप 4x4 के लिए यहाँ पर समझाया है। ओके, आई होप किसी को अगर नहीं समझा होगा तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये अभी स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पर यह के मैप कैसे हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सी, मैं थोड़ा यहाँ पर नीचे के स्लाइड में यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ओके, नाउ के मैप्स फॉर 2 to 5 वेरिएबल्स। ओके, के मैप्स हमें यहाँ पर 2 to 5 वेरिएबल्स तक प्रेजेंट रहता है। हमारे करिकुलम में 2 to 4 वेरिएबल तक ही दिया है, बट आई एम गिविंग यू अप टू 2 to 5 वेरिएबल्स। आई एम जस्ट गिविंग यू idea. Okay, as well as I will give you practice over 2 to 4 variable. See, K-map method is most suitable for minimizing Boolean function of 2 variable to 5 variable. यानी K-map ये मेथड आपको बहुत सुटेबल होगी to minimize Boolean function between 2 variable to 5 variable. Now we will discuss it this method one by one. Okay, so see here, now I am showing you first method. It is a 2 variable K-map. ओके, तो 2 वेरिएबल के मैप कैसे होता है इसी, अभी आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल के मैप यहाँ पर शो कर रहा हूँ। 2 वेरिएबल के मैप कुछ आप इस तरह उसे अंडरस्टैंड करोगे। द नंबर ऑफ सेल इन 2 वेरिएबल के मैप इज 4. 2 raised to 2 means 4. Okay, so that's why how many number of cells in 2 variable k map? There are total 4 cells in 2 variable k map. This will be one of the question of your MCQ. Okay, so that's why the number of cells in 2 variable k map is 4. Since the number of variable is 2, how many variables are here? 2. Okay, the following figure will shows 2 variable k map. How? See, I have shown you with the help of 2 figures. First one is okay here. Okay, आपको यहाँ पर 4 स्क्वायर बॉक्स दिए हैं, M0, M1, M2, M3, और यहाँ पर वह स्क्वायर बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक स्लैंटेड लाइन के नीचे लिखा है y, अबव लिखा है z. y एंड z आर 2 वेरिएबल. ओके, तो इस फैशन में जनरली अक्सर हमारा 2 वेरिएबल के मैप शो किया जाता है. ओके, तो इस तरह जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर फॉर्म में इस तरह 2 वेरिएबल के मैप अक्सर शो किया जाता है. ओके, तो यहाँ y की वैल्यू ली है 0 या 1. सिमिलरली z की वैल्यू ली है कॉलम के लिए 0 या 1. ओके, तो y की वैल्यू रो के लिए ली है 0 या 1 और z की वैल्यू कॉलम के लिए है 0 या 1. ओके, सिमिलरली अदर आपको यहाँ पर और में और एक 2 वेरिएबल के मैप यहाँ पर शो किया है, उसमें हॉरिजॉन्टल यहाँ पर सारे जो 4 स्क्वायर बॉक्स है वह शो किए हैं, M0, M1, M3, M2. इस फैशन में यहाँ पर भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की मेथड अक्सर यूज नहीं होती है. इस तरह की मेथड अक्सर यूज नहीं होती है. ओके, यहाँ स्लैंटेड लाइन के ऊपर ही लिख दिया YZ और वहां सिर्फ कॉलम की वैल्यू दी है 00011110. ओके, लेकिन हम पहली वाली मेथड ही अडॉप्ट करेंगे. आपको पहली वाली मेथड के द्वारा ही मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ. सी, there is only one possibility of grouping 4 adjacent minterm. Okay, there is only one possibility of grouping 4 adjacent minterm. यानी हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर के मैप के द्वारा हम मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स फाइंड आउट करने जा सकते हैं. So that's why there is only one possibility of grouping 4 adjacent minterm.
Okay, these possibilities combinations of grouping of two adjacent minterms are, आपको जो टू adjacent minterms जो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकोगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस दिया है, द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग टू adjacent minterms आर, यानी हम इस तरह यहाँ पर minterms फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर आप m0 और m1 का कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको पहली minterm मिल सकती है। अगर आप M2 और M3 के द्वारा अगर कंबाइन करते हो तो सेकंड मिनटर्म मिल सकती है। अगर आप M0 और M2 के द्वारा अगर कंबाइन करते हो तो आपको थर्ड मिनटर्म मिल सकती है। अगर आप M1 और M3 के द्वारा कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको फोर्थ मिनटर्म मिल सकेगी। लेकिन अभी यहाँ मैं मिनटर्म की बात यहाँ पर बाद में करूँगा। ओके, अभी मैं यहाँ पर आपको पहले सेल कैसे है, सेल को कैसे यूज करना है, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर थर्ड डायग्राम यहाँ पर दी है स्लाइड में, उसमें आपको M0 M1 M2 और M3 लिखा है, और A स्लैंटेड लाइन के लिए नीचे लिखा है, और B स्लैंटेड लाइन के अबो लिखा है। सबको दिख गया? सभी वो लाइन, सभी वो डायग्राम को देख रहे हैं? Everyone is getting that diagram now? In above diagram there is a 0 or 1. Okay, in above diagram if you compare it with yz, okay, ab with yz, okay, रो की वैल्यू लिखी है 0, okay, और सेकंड रो की वैल्यू लिखी है 1। अभी मैं आपको 0 और 1 नहीं लिखूंगा, अभी मैं यहाँ पर a बार और a लिखूंगा। a बार बोले तो 0, a मीन्स 1। सिमिलरली कॉलम वैल्यू लिखी है 0 और 1 इन z टर्म। ओके, z जहाँ है, z के सामने 0 और 1 कॉलम वैल्यू लिखी है, तो अभी मैं यहाँ पर b के लिए लिखे हैं b बार और b। ओके, तो b बार इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट अभी भाई इसमें? अभी यहाँ हम बाजू में लिखे हैं अपर लेफ्ट सेल करस्पॉन्ड्स टू ए बार बी बार, यानी M0 जो है वह M0 हम यहाँ उसको ऐसा रीड कर सकेंगे, इट इज अपर लेफ्ट सेल, इट इज करस्पॉन्डिंग टू ए बार बी बार, यानी वहां उसकी क्या वैल्यू रहेगी? ए बार बी बार। ओके, then upper right cell corresponding to, yani M1 is upper right cell, it is corresponds to a bar b, यानी उसकी वैल्यू क्या रह सकती है? a bar b। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? सभी को समझ में आ रहा है? आर यू विथ मी? ओके, देन थर्ड बता रहा हूं, लोअर लेफ्ट सेल करस्पॉन्ड्स टू ए बी बार। लोअर यानी बॉटम साइड में M2 है, तो M2 इज अ लोअर लेफ्ट सेल, और उसे यहाँ पर A और B में रिप्रेजेंट किया है, सो दैट्स व्हाई लोअर लेफ्ट सेल करस्पॉन्ड्स टू ए बी बार। उसके बाद और जो M3 है, तो M3 इज अ लोअर राइट सेल, इट इज करस्पॉन्ड्स टू ए बी। ओके, तो इस तरह आप उसे रीड कर सकोगे। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई अभी किसी को? चलिए अभी मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टू वेरिएबल के मैप के ऊपर मैं एक छोटा सा आपको प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ बाकी अदर मेथड यहाँ पर बताने से पहले आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम में लेकर चलता हूँ। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू हियर वन प्रॉब्लम। ओके, सी, प्लॉट द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल ऑन के मैप। आपको ट्रुथ टेबल दिया है, इस प्रॉब्लम में मैंने एक ट्रुथ टेबल दे दिया। ट्रुथ टेबल में आपको यहाँ पर ए बी और वाई दे दिया। ए बी की वैल्यू है 0 0, वाई की वैल्यू है 0। ए बी की वैल्यू है 0 1, वाई की वैल्यू है 0। ए बी की वैल्यू है 1 0, वाई की वैल्यू है 0। ए बी की वैल्यू है 1 1, वाई की वैल्यू है 1। यानी इस ट्रुथ टेबल में आपको y इज इक्वल टू ए बी दिया है। क्या? इस ट्रुथ टेबल में आपको क्या दिया है? y इज इक्वल टू ए बी। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर इसका के मैप का रिप्रेजेंटेशन शो करना है। ओके, इस ट्रुथ टेबल को हमें इस के मैप में पुट आउट करना है। कैसे पुट आउट करोगे?
ऑलरेडी आपको यहाँ पर मैंने पिछले थ्योरी में बताया कि भाई देखिए इस तरह थ्योरी है, तो अभी मैं यहाँ पर फिर से यहाँ आपको वह थ्योरी रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सी यहाँ पर के मैप का रिप्रेजेंटेशन इस डायग्राम के द्वारा बताया। ओके, यहाँ 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर के अंदर लिख के दिया है मैंने 0 1 2 3, और यहाँ पर 4 स्क्वायर के ऊपर एक स्लैंटेड लाइन है, स्लैंटेड लाइन के नीचे लिखा है ए, अबव लिखा है बी। स्लैंटेड लाइन के लिए नीचे लिखा है ए के नीचे लिखा है ए बार की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 1, बाजू में उसके वैल्यू भी लिख के दिया है। ओके, बी के लाइन में कॉलम वैल्यू लिखा है बी बार और बी बार की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1। मैंने आपको जैसा ऊपर बताया अपर से अपर लेफ्ट सेल, तो मैं यहाँ पर जो 0 है तो 0 को यहाँ आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। वो कैसे लिया, ए बार बी बार, ए बार बी बार इज क्या वैल्यू रहेगी, ए बार की वैल्यू है 0, बी बार की वैल्यू है 0, तो 0 0 अगर लिखता हूँ तो वो वैल्यू मुझे मिला 0, इसलिए मैंने 0 वहां पुट आउट कर दिया। सबको समझ में आया कि नहीं भाई? देख लो, यही वक्त है। ओके, देख लो, यह यहाँ पर ही समझा रहा हूँ की होल। ओके, जिसको नहीं समझा है उसने रिवाइंड करो फिर से। ओके, फिर से वीडियो देखो। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर वही समझा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम की वैल्यू लेने जा रहा हूँ। वहां पर है ए बार बी, यानी वहां 1 लिखा है, तो 1 क्यों आया, तो 1 यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ए बार यहाँ रो की वैल्यू रहेगी, ए बार यानी 0 और बी यानी 1, तो यहाँ ए बार की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो 0 1, यानी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। गेटिंग एवरीवन? सिमिलरली थर्ड वन, अभी लोअर सेल में जा रहे हैं, लोअर लेफ्ट सेल में जहां 2 लिखा है। 2 क्यों आया, 2 यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर रो का वैल्यू है ए इज इक्वल टू 1, और कॉलम की वैल्यू है बी बार यानी 0। ओके, तो यहाँ ए बी बार लिखा है, ए बी बार इज इक्वल टू 1 0। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, इसलिए मैंने वहां पर 2 लिखा है। सिमिलरली लास्ट कॉलम, यहाँ पर जो 3 लिखा है वह कॉलम देखते हैं, उसका रो है ए और कॉलम है बी, यानी रो की वैल्यू ए की वैल्यू है 1, कॉलम की बी की वैल्यू है 1, तो ए और बी यहाँ पर 1 1 है, तो 1 1 इसलिए है 3, इस वजह से यहाँ 3 लिखा है। अभी हम यहाँ के मैप के द्वारा जो हमें यहाँ पर हमें गिवन प्रॉब्लम में दिया है ट्रुथ टेबल। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस के मैप रिप्रेजेंटेशन। ऐसा कोई बंदा मेरे ख्याल से नहीं होगा कि उसको समझेगा नहीं, इतने सिंपल मैनर में मैंने यहाँ पर उसे समझा दिया। ओके, आई होप इफ यू आर नॉट गेटिंग प्लीज रिपीट द रिवाइंड द वीडियो। ओके, फिर से रिपीट देखो। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल लेकर चल रहा हूँ। ट्रुथ टेबल आपका था ए बी और वाई, इसमें सिर्फ आपका वाई 1 कब है, जब 1 1 वैल्यू ए और बी की है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये सारी वैल्यू वहां पर पुट आउट कर रहा हूँ ये ट्रुथ टेबल में। ए बी, ओके, यानी अभी आपको ये समझ में आया कि भाई 0 0 कौन है, ए बी, ए बार बी बार यानी 0 0, ओके, ए बार बी यानी 0 1, ओके, ए बी बार यानी 1 0 और ए बी इज इक्वल टू 1 1, ये तो आपको समझ में आया। अभी वहां पर आपको ये वैल्यू पुट आउट करना है, y की वैल्यू आपको अंदर स्क्वायर बॉक्स में या सेल में आपको पुट आउट करना है। ओके, तो आपका 3 के लिए वैल्यू 1 रहेगा, बाकी सब के लिए वैल्यू 0 रहेगा। सी आई जस्ट पुटेड ऑल द वैल्यू। ओके, तो आपको शायद यहाँ पर ये समझ में आया होगा। तो 0 1 2 3 मैंने ऑलरेडी लिखे थे, लेकिन उसके बाजू में मैंने वहां पर 0 0 0 और 1 वैल्यू पुट आउट किया। आई होप ओके, आपको ऐसा नहीं रीड करना है, ध्यान में रखो, मैं रीडिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। ये पहला 0 सेल है, देन 1 सेल है, देन 2 सेल है, थर्ड सेल है, उसमें 0 सेल की वैल्यू है 0, फर्स्ट सेल की यानी 1 जहाँ है उसकी वैल्यू है 0, सेकंड सेल की वैल्यू है 0, थर्ड सेल की वैल्यू है 1। इस तरह हमने यहाँ पर वैल्यू पुट आउट की है। ओके, तो इस तरह आप के मैप में प्रेजेंटेशन कर सकते हो।
तो इस तरह आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व किए। प्लॉट द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल ऑन की मैप। तो इस तरह इसका आंसर ये है। गेटिंग? अभी तक आपको इतना ही पुट आउट करना है, आगे क्या करना है आगे बताऊंगा, अभी पहले यही प्रैक्टिस रहेगी। हाँ, सो दैट्स वाई आपको ट्रूथ टेबल या एक्सप्रेशन के द्वारा, ट्रूथ टेबल या एक्सप्रेशन के द्वारा के मैप में वैल्यू कैसे फिल करना है ये समझ में आना चाहिए। व्हाट इज योर मोटिव? आपका एक ही मोटिव है अभी यहाँ इस लेक्चर में, आपको के मैप समझना चाहिए। दूसरा, के मैप समझने के बाद उसका आपको ट्रूथ टेबल के द्वारा वो वैल्यू कैसे पुट आउट करना है ये समझने को होना। दिस इज योर मोटिव। चलिए अभी मैं यहाँ पर के मैप अभी 3 वेरिएबल के लिए बताता हूँ। अभी तक हमने 2 वेरिएबल के लिए के मैप देखा है, अभी मैं यहाँ 3 वेरिएबल का के मैप यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखिए 3 वेरिएबल का के मैप कुछ इस तरह रहेगा। 3 वेरिएबल के मैप इज द नंबर ऑफ सेल इन 3 वेरिएबल के मैप इज 8। ओके, कितने कितने सेल है यहाँ पर 3 वेरिएबल के मैप में? 8। ओके, सेंटेंस फिर से रीड कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ सेल in 3 variable k map is 8. Why and how? I already told you 2 raised to 3 is nothing but 8. Okay, तो 2 raised to 3 is nothing but 8, यानी टोटल 8 सेल यहाँ पर रहेंगे। आप गिन भी सकोगे, टोटल M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7, टोटल 8 स्क्वायर है, यानी 8 सेल आ गए। ओके, सिंस द नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3, यहाँ पर टोटल अगर 3 वेरिएबल है, द फॉलोइंग फिगर शोज 3 वेरिएबल के मैप। यहाँ पर 3 वेरिएबल अभी कौन कौन से है? तो देखिए टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे आपको स्लैंटेड लाइन के नीचे लिखा है x, यह पहला वेरिएबल हो गया, और स्लैंटेड लाइन के अबो y और z लिखा है, यानी वो 2 वेरिएबल हो गए। क्वेश्चन आ सकता है कभी किसी के द्वारा, सर x नीचे क्यों लिखा, yz ऊपर क्यों लिखा? देखिए आपके पास कितने रो है और कितने कॉलम है, याद रखिए हमारे पास 2 रो है। 2 रो यानी x की 2 ही वैल्यू हो सकती ना, बराबर, x की 2 ही वैल्यू हो सकेगी ना, इसलिए 2 रो के वजह से 2 ही वैल्यू है, यानी x बार और x। गेटिंग माय पॉइंट? और मैंने yz ऊपर लिखा है, yz ऊपर लिखा है, यानी वहां पर कितनी वैल्यू हुई उसकी? टोटल 4, यानी कितने सेल आए आपके पास? 4 सेल। यानी कौन कौन सी वैल्यू है आपके पास? 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके, इस तरह की 4 वैल्यू आ गई। अभी किसी के द्वारा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सर मैंने एक्स वाई अगर बॉटम में लिखा और जेड ऊपर लिखा, तो डायग्राम को अगर उस तरह चेंज किया तो चलेगा क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आप यहाँ पर वैसा भी कर सकोगे। ओके, नो प्रॉब्लम, आप उस तरह उस फैशन में भी ले सकते हो। ओके, तो आपने वो फैशन भी अडॉप्ट की तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, डोंट बॉदर अबाउट इट। लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ इस डायग्राम के द्वारा। तो इसलिए x नीचे लिखा है मैंने, yz ऊपर लिखा है। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? नाउ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग 8 एडजेसेंट मिन टर्म, यानी अभी आपने को आगे जाना है तो आगे मिन टर्म्स लेना है। तो मिन टर्म्स की क्या पॉसिबिलिटीज है? देयर इज वन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग 8 एडजेसेंट मिन टर्म्स। ओके, तो आपको ये पहला रूल है कि वहां आपको 8 टर्म्स एट अ टाइम आपको लेने रहेंगे एज अ मीन टर्म्स। ओके, लेकिन ये कैसे लेने मैं आपको फिर से ये रूल बताऊंगा। जस्ट अभी मैं यहाँ पर थियोरेटिकली आपको यहाँ बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली और मैं आगे वह कैसे यहाँ लेना है ये सारी बातें आपको ग्राफिकली सभी बताऊंगा। ओके, ये सेंटेंस सिर्फ अभी याद रखो, अगर आप रफ लिख रहे हो तो नो प्रॉब्लम, रफ में भी लिख के रखो। देयर इज वन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग 8 एडजेसेंट मिन टर्म। ओके, सेकंड, देयर इज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग 4 एडजेसेंट मिन टर्म, यानी 4 एडजेसेंट मिन टर्म भी कर सकते हो। तो 4 एडजेसेंट मिन टर्म कैसे करोगे? M0 M1 M3 M2, ओके, M0 M1 M3 M2, या M4 M5 M7 M6, ऐसा भी कर सकते हो, यानी रो, या आप 2 रो 2 कॉलम भी ले सकते हो, M0 M1 M4 M5, या फिर आप M1 M3
M5 M7, या फिर आप M3 M2 M7 M6 ऐसा भी ले सकते हो। या अगर आपको ऐसा लगा कि बस सर मैं ऐसा ले सकता हूँ कि M2 M0 यानी लास्ट और फर्स्ट, ओके, तो M2 M0 M6 M4 ऐसा भी ले सकते हो। तो इस तरह का फोर फोर का फोर सेल का ग्रुपिंग आप कर सकते हो, फोर सेल का कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो मिन टर्म्स फाइंडिंग के लिए। ओके, चलिए, और आप यहाँ पर और क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग टू एडजेसेंट मिन टर्म्स। ओके, तो टू पॉसिबल मिन टर्म्स का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। वो कैसा, M0 M1, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, M0 M1। ओके, सिमिलरली M1 M3 ओके, ये M3 M2, या M4 M5, M5 M6 M7, M7 M6, इस तरह भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। यहाँ तक आए, हाँ। फिर बाद में आप वर्टिकल भी कर सकते हो, M0 M4 M1 M5 M3 M7 और M2 M6, ये सारे कॉम्बिनेशन आप कर सकोगे। Okay, so if x is equal to 0, then three variable k map becomes two variable k map. अगर x की वैल्यू अगर 0 रही, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो k map है थ्री वेरिएबल नहीं रहेगा, वह टू वेरिएबल k map हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सेंटेंस यहाँ पर याद रखना। मैं ये जो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये पॉइंट मैं ग्राफिकली आपको फिर से प्रूव करूंगा, बट कीप इट इन माइंड एट दिस मोमेंट। ओके, जैसे जैसे टाइम आएगा मैं आपको ये सारी बातें मिन टर्म्स फाइंडिंग के लिए आपको बताऊंगा, ठीक है? So I hope you got the idea about this three variable k map. Okay. Now again I am turning toward the four variable k map. Okay, तो four variable k map में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, the number of cell in four variable k map is 16। कितने टोटल फोर वेरिएबल अगर k map रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ सेल रहेंगे 16। याद रखिए, सिंस द नंबर ऑफ वेरिएबल इज 4, अगर वहां पर अगर फोर वेरिएबल है तो द फॉलोइंग फिगर shows four variable k map. Okay, so this figure is showing four variable k map. How? Okay, यहाँ पर टोटल 16 सेल है। 16 सेल के नाम है M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 एंड M15। ये टोटल 16 सेल है। ये सेल के टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक स्लैंटेड लाइन के नीचे लिखा है ए बी और अबव लिखा है सी डी, यानी टोटल कुल मिलाकर कितने वेरिएबल हो गए, ए बी सी डी, यानी फोर वेरिएबल हो गए। तो ये फोर वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एज अ रो 1 में 0 0, रो 2 में 0 1, रो 3 में 1 1 और रो 4 में 1 0। ओके, और कॉलम में सी डी यूज किया जाएगा, सी डी C1 में यूज किया जाएगा 0 0, C2 में यूज किया जाएगा 0 1, C3 में यूज किया जाएगा 1 1 और C4 में यूज किया जाएगा 1 0। इस तरह का रो और कॉलम कॉम्बिनेशन वहां पर रह सकता है, यानी आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल लगेगा 16 लाइंस का ट्रुथ टेबल। ओके, नाउ अभी यहाँ पर इस तरह का हो गया, ये फोर वेरिएबल का के मैप, आपको यहाँ पर डायग्राम समझ में आ गई। अभी मैं यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन से यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ओके, देयर इज ओनली वन पॉसिबल ऑफ ग्रुपिंग 16 एडजेसेंट मिनटर्म। तो यहाँ पर 16 के 16 जो सेल है वो एज अ वन पॉसिबिलिटी हो गई मिनटर्म फाइंडिंग के लिए। या फिर आप यहाँ पर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, R1 R2 R3 and R4 represent min term of first row, second row, third row and fourth row respectively. Similarly, C1 C2 C3 C4 represent the min terms of first column, second column, third column and fourth column respectively. Similarly, the possible combination of grouping 8 adjacent min terms are R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 R1 R C1 C2 C2 C3 C3 C4 एंड C4 C1। ओके, तो आप यहाँ पर इस तरह भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आई टेल यू, डोंट बॉदर अबाउट। इन केस यहाँ पर अगर W 0 है तो फोर वेरिएबल के मैप यहाँ पर थ्री वेरिएबल का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर W नहीं है। ओके, तो यहाँ इस तरह का फोर वेरिएबल के मैप इस तरह रहेगा। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस फोर वेरिएबल के मैप।
Okay, now अभी मैं यहाँ पर 5 वेरिएबल के मैप है, तो 5 वेरिएबल के मैप में सिर्फ एक ही डिफरेंस रहेगा, याद रखिए। ओके, तो द नंबर ऑफ सेल इन 5 वेरिएबल के मैप इज 32। कितने कितने सेल होंगे यहाँ पर? टोटल 32। कितने वेरिएबल रहेंगे? 5 वेरिएबल। कैसे क्या 32 सेल यहाँ पर होंगे? रिमेंबर, यहाँ पर हमारे वेरिएबल पहले देखते हैं 5 वेरिएबल कहाँ और कौन से हैं। देखिए, W फर्स्ट वेरिएबल, X सेकंड वेरिएबल, Z थर्ड वेरिएबल, Y फोर्थ वेरिएबल और V फिफ्थ वेरिएबल। ओके, तो यहाँ कुल मिलाकर W, X, Y, Z और V कुल मिलाकर 5 वेरिएबल हो गए। और इन पांचों वेरिएबल को यहाँ यूज करते समय आप 4 वेरिएबल का के मैप यूज करोगे, और यूज करते समय v की वैल्यू 0 या v की वैल्यू 1, यानी जो फिफ्थ वेरिएबल है वह उसकी वैल्यू आइदर 0 या आइदर 1 के लिए यूज करोगे। ओके, तो ऐसे कुल मिलाकर when v is equal to 0, 16 cells are present, and when v is equal to 1, another 16 cells are present. टोटल कंबाइंड सेल्स आर 32। तो आपके लिए यहाँ पर 32 सेल हो जाएंगे। ओके, और ये रूल बताया है भाई, यहाँ पर आप यहाँ मिन और मैक्स टर्म्स कैसे लोगे। तो नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज हियर ओनली आई my motive was to tell you this 5 variable k map is also present. ओके, नाउ आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ओके, सभी को आइडिया आ गया यहाँ पर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप्स के द्वारा, और 5 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल के मैप के द्वारा आपको आइडिया समझ में आ गया। अभी कोई डाउट अगर होगा तो आप यहाँ मुझे बेझिझक यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हो और मुझे कोई भी चीज पूछ सकते हो। ओके, दोज हु आर वाचिंग my video, they can try to share my channel as well as like my video. Okay, and also students, you are requested to give your attendance in the comment box with your roll number. Okay, and outsider जो student है, those who are watching my video, they can also give your thoughts about the video in my comment box. Thank you for watching my video. Thank you very much.